Okay, then we will start with our today's session. So, please, any one of you can unmute themselves and answer to my question like, what is Google PageSpeed Insight? Have you heard about this term? Yes, ma'am. Yes, Abhishek. So, what is it? Google Page Speed. Sorry, Ma'am, you are asking about the Google Page Speed. Google PageSpeed Insight. No, Okay, anyone else? Interns, please respond. Like, otherwise, No, I'll. ma'am, I haven't heard. Okay. What about others? Please be active because in this way I won't teach you because you are not at all active and you want me to like Ma'am, teach I you didn't get the properly. question only. I'm asking, have you heard about the term Google Page Speed Insight? Ma'am, it must be the time when a site takes to load. I'm just asking, like, have you heard about this term? I'm not like asking you to Mm, define it. I'm just getting an idea. Like, have you heard of this term earlier? Ma'am, page speed would be the time it takes to load. No, I'm basically asking if have you heard of this term? I'm just asking yes, no. No, no, ma'am. Okay. Okay, that's what I was asking. I was not asking to define it. I was just asking, have you heard of this term? No, ma'am. Okay. So none of you have heard of this term. So I'll share my screen and I will show you what is Google PageSpeed Insight and how it actually works and everything. Okay, so I'll firstly brief you about what actually Google PageSpeed Insight is. So, Google PageSpeed Insight is basically a tool which was developed by Google so that we can access the performance of the website in terms of speed and user experience. Like, what is our website speed and how is the user experience? It basically analyzes the content of the web page and gives us the performance score with specific like also gives some recommendation how can we enhance the page loading speed. So I'll be sharing my screen and I'll be showing you all what is Google Page Speed Insight. A second. So is my screen visible to you all? yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is Google Page Speed Insight. So basically it is a tool of Google. What you have to do is you have to just pay. So you just have to paste the URL of the website you want to analyze. So we will analyze today. We will analyze Prayug.com. So I'll just copy the link from here, copy the URL and paste it over here and click on analyze. So it will give me the like desktop version and the mobile version both, like how it actually is performing in like real terms for mobile device and for the desktop device, desktop version. So then if I talk about the like as you can see, it has given me for both the devices. So here it will show us multiple things and it is diagnosing right now. It will take some time. So it is a free tool like of Google. So here you can obviously check the multiple things.
So if I talk about LCP, that is largest contentful paint, it is the metrics like how which tells us like how quickly our the content of our main the main content opens, like how much time it is taking to load. So that is our LCP. So basically, we have multiple things with which we can improve our LCP. We will talk about that also. And if I talk about an ideal LCP, that is 2.5 seconds. Right now, it is 2.9 seconds for Prayug. And it basically tells us the how the largest visuals of our page are loading, like how much time are they exactly taking to load. Okay. Is it clear? Because I have to explain all of these terms, so I'll just explain it and ask you all, is it clear? Because it is very important to clear all of these terms, then only you will be able to understand all of these things. Is it clear to you all? Like what is LCP, largest contentful paint? Ma'am, I'm getting little bit, but not completely. Just can you give the example? Okay, I'll show you one example. Okay, for example, let's take this picture. So this is, I'm giving you an example. For example, this is the largest content of my website. Like it is taking more time to load. I'll reload it again. So the time this image is taking to load is my largest contentful page for an image, and it can be any content, like any of the content. It can be text, images, and multiple things. So depending on how much time this image is taking, or the other content, the main content, the largest content is taking, is considered as my LCP. Okay. Okay. But how much time it should take ideally? Ideally, it should be 2.5 seconds. Here, as you can see, it is 2.9 seconds, but ideally, it should be 2.5 seconds only. Okay. No, I'm not talking. I'm not talking about the LCP particularly. How much time it should take the page to load? The whole page I'm talking about. Abhishek, your voice is breaking. I'm not able to hear you properly. Hmm. I'm not talking about particularly LCP, which you have taught just. I'm just talking about the whole page. Suppose that I'm the user. Yeah, I just clicked it out on particular link. Page is getting open. So how much time it should take the whole page to open So ideally? you are basically asking the ideal loading page speed Uh, of a yeah, yeah, page of a yes, website yes, should be. yes, So it should yes. be 0 to 2.5 seconds, like less than 2.5 seconds ideally, which will be considered as an ideal time to load a page. Okay, Okay. not more than that. Okay, what about others? Is it clear to you all what is LCP? Okay, so I'll be sharing my screen now, and I'll just ask one time कि अगर आप सबको clear है तो एक ही time में respond करना, otherwise I'll wind up today's session here. Okay, ma'am. Yes. So was LCP clear to you all? Like what is largest contentful paint? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the next is first contentful paint. तो एज लार्जेस्ट कंटेंटफुल में आप सबको मैंने बताया है कि जो भी हमारी वेबसाइट का लार्जेस्ट कंटेंट होता है उसको लोड होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कंसिडर्ड एज आवर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट. एंड
फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट इज बेसिकली whenever we open a website, जब हम एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, सो द कंटेंट विच इज विजिबल ऑन आवर वेबसाइट, सबसे पहले कंटेंट हमारी वेबसाइट पे विजिबल होता है, वो लोड होने में कितना टाइम लगा रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज आवर फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट. ओके, Yes, ma'am. so I hope these two things are clear कि first contentful paint क्या होता है and largest contentful paint क्या होता है. And talking about the ideal time of first contentful paint is कि वो 1.8 सेकेंड और उससे कम होना चाहिए. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, it is on green line, that is 1.1 सेकेंड which is less than 1.8 सेकेंड. तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट का फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट क्या है, अच्छा है, ये ग्रीन में है. ओके, सो आई होप ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होंगी, बिकॉज ये दोनों मतलब ये सारी टर्म्स क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इन माइंड. यस, मोहम्मद राजी, यू वांट टू से समथिंग? Yes, ma'am. Ma'am, is it possible that first contentful page can be the largest contentful page? सो यू आर आस्किंग कि जो हमारा फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है, क्या वो लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट हो Yes, सकता है ma'am. हमारे? Yes, हाँ, ma'am. हो सकता है. जैसे प्रायोग पे अगर मैं ये बात आपको एग्जांपल दूं कि अगर ये हमारी इमेज है, अगर ये जैसे वेबसाइट के सबसे ऊपर है, तो मे बी ये इमेज वेबसाइट की सबसे लार्जेस्ट इमेज भी हो सकती है, एंड इट कैन बी आर फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट कंटेंट भी है, क्योंकि सबसे पहले ये इमेज हमें शो होती है, तो ये दोनों Yes, ma'am. सिमिलर भी हो सकती है. Okay. ओके. Okay, ma'am. Yes. And the third point is interaction to next paint. So interaction to next paint is basically कि हमारा जो यूजर है वो कितनी जल्दी, मतलब हमारी जो वेबसाइट है वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है. जो भी हमारा मतलब यूजर है वो किसी भी चीज पे क्लिक करता है, तो इंटरेक्शन कितनी जल्दी होती है. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, तो ये वाला कंटेंट कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है हमारी वेबसाइट पे, that is considered as our interaction to next page. Okay, is it clear to you all? Ma'am, how much time it takes? Like largest contentful, you have told it takes 2.5 second, and how much time it should take? So it should INP be like it should be below 500 milliseconds. Milliseconds. 500 milliseconds. Yes, and here it is 396. So ideally it should be like 200 milliseconds. Well, 200 will be considered as the best one. Okay. Okay. And talking about the cumulative layout shift. So cumulative layout shift में basically क्या होता है हमारा, कि जो भी हमारी वेबसाइट का कंटेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव विजिटेड सम वेबसाइट जहाँ पर आप कुछ कंटेंट रीड कर रहे हैं, एंड देन सडनली एक ऐड आ जाती है, और जो कंटेंट है वो उस ऐड के ऊपर और नीचे शिफ्ट हो जाता है. न्यूज चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स पे आपने ये बड़ा कॉमनली देखा होगा. लेट मी check if I can show you an example for this. जैसे if, okay, so if I'm reading this article, तो मैं ये आर्टिकल रीड कर रही हूँ, एंड एकदम से ऐड आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल इस आर्टिकल के बीच में ऐड आ जाती है, एंड जो भी इनका कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, इसकी जगह ऐड आ गई, एंड जो भी कंटेंट है वो ऊपर और नीचे ऐड के अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो गया. सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so the good, if I talk about the cumulative layout score, layout shift score is 0.1 or less than that. कि आपका जो भी क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए, या उससे भी कम होना चाहिए. ओके, सो आई होप जो अब तक हमने टर्म्स समझी हैं, दैट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल. डन. Yes, ma'am.
So Yes, ma'am. the next one is time to first byte, that is TTFB. So ये हमें हमें बेसिकली बताता है कि हमारा जो वेब सर्वर है कितना टाइम ले रहा है लोड होने में। तो कितना टाइम यूजर्स को बेसिकली मतलब एक यूजर्स के ब्राउजर से कितना टाइम लग रहा है रिक्वेस्ट लेने में। तो वो हमारा क्या है, टाइम टू फर्स्ट बाइट। कि बेसिकली ये टाइम होता है जब एक यूजर ने एक फाइल को रिक्वेस्ट किया एंड जो हमारी उस फाइल का पहला बाइट है वो कितनी देर में ब्राउजर को रिसीव हुआ, दैट इज कंसिडर्ड एज आर टाइम टू फर्स्ट बाइट। ओके, एंड इसका आइडियल स्कोर इज 0.8 सेकेंड और लेस। तो ये 0.5 सेकेंड में है तो वो ऑब्वियसली लेस। ओके, सो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू ऑल, बिकॉज ये टर्म्स जब तक आप नहीं समझोगे आपको गूगल पेज स्पीड इनसाइट के बारे में समझ नहीं है। मैम ये एक बार दोबारा बता दीजिए आप, टाइम टू फर्स्ट बाइट। टाइम टू फर्स्ट बाइट अभिषेक ये होता है कि जो भी मतलब फॉर एग्जांपल आप मेरी वेबसाइट पे आए, ठीक है, आपने किसी फाइल के लिए रिक्वेस्ट करी एंड वो फाइल वो मतलब वो टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने 3:33 पे रिक्वेस्ट करी एंड देन वो जो मेरी फाइल है मतलब जो आपने फाइल की रिक्वेस्ट करी है वो ब्राउजर को कितनी देर में उसका पहला बाइट फर्स्ट फर्स्ट बाइट रिसीव होता है, वो क्या होता है हमारा टाइम टू फर्स्ट बाइट। की फर्स्ट बाइट को रिसीव होने में कितना टाइम लगेगा वो हमारा टाइम टू फर्स्ट बाइट कंसिडर होता है और इसका आइडियल टाइम 0.8 सेकेंड से कम होना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? Yes, यस। ma'am. ओके, अगर नहीं क्लियर है तो आई एक्सप्लेन अगेन, बट बिकॉज ये सारी पांचों टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आप सबको, सो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अगर नहीं क्लियर है सो प्लीज आस्क अगेन लाइक एनी मैम ऑफ एक दीज बार टर्म्स। एग्जांपल से बता दो ये पीटीएफबी। एग्जाम्पल अभी तो मैं आपको इसका नहीं शो कर सकती, बट इफ आई गेट सम एग्जाम्पल आई लाइक इन्फॉर्म यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, मैम एक चीज और दिमाग हाँ में जी, आ हाँ गई, जी, हाँ जी, ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल कर। हाँ जी। आईएनपी जो आपने बताया है, ये आईएनपी और ये एफसीपी, मतलब कि क्वाइट सिमिलर है दोनों। नहीं, सिमिलर नहीं है। हाँ। हाँ। एफसीपी तो बेसिकली जो भी आपका फर्स्ट कंटेंट होगा वेबसाइट पे जब आप वेबसाइट विजिट करोगे वो हो गया। तो इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेज इज बेसिकली कि जब वो जो मतलब लोड स्पीड में करने में टाइम आता है ना, जो आपने हाँ जैसे मतलब हमने गए कि कि किसी चीज पे अगर आपने एज अ यूजर क्लिक किया तो वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, तो वो हमारा इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेज क्लिक करने के बाद हाँ आपके। ठीक है, ठीक है। और ये हमारा एफसीपी, क्या कह रहे हैं? एफसीपी का एक बार एफसीपी डेफिनेशन तो बता जो भी दीजिए। आप मतलब वेबसाइट पे सबसे पहले विजिट सॉरी वेबसाइट पे जब विजिट करते हो और सबसे पहले जो आपको कंटेंट दिखता है वेबसाइट पे दैट इज कंसिडर्ड एज आर एफसीपी। सपोज दैट एक माइंड में यहीं से एक क्वेश्चन रेज हो, जैसे हमारा सर्वर मतलब कि नेट लो चल रहा है, ठीक है। अब जी, क्या बोलते हैं, अब कभी कभी उसमें आर टैग आ जाता है, कोई पूरा लोड नहीं आता है, तो वो भी एफसीपी कहलाएगा हमारा। समझी नहीं अभिषेक कि फिर जैसे से। कोई कोई इमेज है हमारे ऊपर, ठीक है, इमेज जैसे जो लैंडिंग पेज है उस पे हमने इमेज लगा रखी है, ठीक है। वो नेट या लोडिंग स्पीड या इंटरनेट की वजह से वो लोड होने में टाइम ले रहा है, तो पहले हमारा ऑल टैग आ जाता है ना, कभी जैसे ऑल टैग हमने डाला होगा तो जो भी इंटरफेस हमारा नजर आएगा वो हमारा सीपी कहलाएगा। नहीं, वेबसाइट का जो प्रॉपर वेबसाइट का लेआउट होता है उसमें से जो आपको पहले सबसे विजिबल होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एफसीपी। ठीक है, ओके। सो टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस इश्यूज, कि यहाँ से आपको ये सब पता लगेगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें किस किस चीज़ में इश्यूज हैं। जैसे इसमें जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो 29 है, एक्सेसिबिलिटी स्कोर है वो 59 है, और अगर हम ये बात करें बेस्ट प्रैक्टिसेस कितनी यूज कर रहे हैं तो उसका स्कोर 93 है और एससीओ का स्कोर हमारा 58 है।
तो टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस फर्स्ट, कि अब हमें क्या बताएगा ये कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने हमें सबसे पहले वही कि आपका जो एफसीपी है आपको उसको इम्प्रूव करना है, देन एलसीपी को इम्प्रूव करना है, और जो हमारा क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट है, स्पीड इंडेक्स मैंने बता ही दिया था आप सबको कि स्पीड इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, और क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट भी मैंने बता दिया था। तो अब बात करते हैं टोटल ब्लॉकिंग टाइम की। टोटल ब्लॉकिंग टाइम क्या होता है कि एक वेबसाइट का जो मेन थ्रेड होता है, कि अगर जैसे आप अभी अभिषेक बात कर रहा था कि जो ऑल्ट टैग विजिबल होता है, तो जब हमारी जो वेबसाइट का मेन थ्रेड है वो ब्लॉक हो गया किसी रीजंस की वजह से, मतलब वो अभी लोड नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वो हमारा किसकी वजह से, मतलब वो हम यहाँ से कैलकुलेट होता है कि टोटल ब्लॉकिंग टाइम कितना हो, कि हमारा फर्स्ट कंटेंट फॉर लोड होने में जितना ब्लॉक मतलब टाइम मतलब वो ब्लॉक हो रहा है उतना टाइम, तो वो हमारा क्या कंसिडर होगा, टोटल ब्लॉकिंग टाइम। ओके। ओके तो सर, वी हैव एक टू। इसमें इसमें जो लिखा है, इसी जो आपने, हाँ, जहाँ पे आपका कर्सर है, लार्जेस्ट कंटेंट टू पेंट, इसमें लिखा है 27.2 सेकेंड। 27.2 सेकेंड, हाँ ये जी। क्या, ये पूरा ये टोटल का एक एवरेज बताया है कि किस चीज का बताया ये है कि टोटल इतना हमें पूरा? टाइम बताया है कि टोटल हमारी वेबसाइट पे कितना टाइम लग रहा है, लार्जेस्ट सारे जो हमारा लार्जेस्ट कंटेंट है उसको, उन सारे कंटेंट को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, मगर हम यहाँ इसको टोटल देख के कैसे पहचानेंगे कि वो सपोज दैट कि वो ये कितना इंडिविजुअल होना बेसिस चाहिए, पे मगर? आपको यहाँ पे बताए, तो उसने बता दिया ना कि आपको इसके हिसाब से उसने रेड किया हुआ है। ठीक है, तो कि आपका अच्छा अच्छा। आइडियल ये रेड है, तो ये आपके लिए मतलब आपको इस पे अर्जेंटली वर्क करना है। ठीक है, अगर ये येलो है तो दैट मीन्स आपको थोड़ा, आप इसमें डिले कर सकते हो, और अगर ग्रीन है तो ऑब्वियसली वो ठीक है। तो इनके हिसाब से आपको इस पे वर्क करना है। देन टॉकिंग अबाउट ओके। ट्री मैप। तो ये क्या है, ट्री मैप है बेसिकली। ट्री मैप क्या होता है कि जब आपकी वेबसाइट लोड हो रही होती है, तो वो कुछ मिली सेकेंड्स में कैसा कैसा दिखती है लोड होते टाइम। तो ये मोबाइल व्यू में दिख रही है कि सबसे पहले जो व्हाट्सएप का आइकन है वो आता है, देन वेबसाइट की ये सब चीजें आती है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये देखो, अब यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमारे एफसीपी में क्या प्रॉब्लम है, हमारे एलसीपी में क्या प्रॉब्लम है, या फिर हम ऑल करके भी सारी चीजें दे सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमें अपने जो डेवलपर है उसको बतानी है। जैसे कि जो जावा स्क्रिप्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और जो और भी जैसे हमारे लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है उनको उन पे भी वर्क कर सकते हैं, और जो लार्ज लेआउट शिफ्ट्स होते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बस अपने डेवलपर को बतानी होती है। बस एक आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें हमें वर्क करनी है, बाकी आपका डेवलपर करेगा इसको। ठीक है। अच्छा, ये चीजें अपने हाथ, अपने कंट्रोल में नहीं है, ये सब चीजें, नहीं, ये सब? हमें मतलब ये बेसिकली क्या होता है, बैकएंड से सारा काम, तो ये सिर्फ हमको अपने डेवलपर को बताना है। हाँ जी। देन टॉकिंग अबाउट द एक्सेसिबिलिटी, कि हमारा जो हमारी वेब ऐप है उसका हम यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हमें चीजें बताते हैं कि हम उसकी एक्सेसिबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि वेबसाइट हमारी कितनी इजीली एक्सेसिबल है। तो ये सब चीजें भी हमारी हमें डेवलपर को ही बतानी है, कि वो ही इस पे काम करेगा। हमको उनको जैसे बेसिकली बताना है कि जो कुछ बटन्स हैं वो चल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे पता लगेगा कि ये बता देगा कि कौन कौन से आपके बटन्स या आइकन्स नहीं चल रहे हैं। तो आपको उनको बोलना है कि वो ये आइकन्स नहीं वर्क कर रहे हैं, तो दे विल सॉर्ट आउट दीज थिंग्स। तो ये सब आपको उनको बताना है। देन टॉकिंग अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस का स्कोर है वो 93 है, और इसमें भी कुछ जो गलतियां, जैसे जो हमारी इमेज का रेशियो वो गलत है, तो हमको क्या करना है, वो इमेज का रेशियो सही करना है, मतलब उसका एस्पेक्ट चेक करके, एंड देन वी हैव टू चेक कि उसमें हम, अगर आप ऐड कर मतलब अगर आप वेबसाइट पे वर्क करें तो आप इमेज खुद भी चेंज कर सकते हो, एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन द वेबसाइट देन आपका जो डेवलपर है या जो भी एडमिन है वो इन इमेजेस को या जो भी चीज उसमें है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। देन इज एसईओ। तो एसईओ में क्या कि बेसिकली हमको जैसे जो लिंक्स हैं वो
डोंट हैव डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, कि हमारे जो कुछ लिंक्स है उनमें डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट नहीं है, कि वो डिस्क्राइब मतलब अच्छे से टेक्स्ट नहीं बताया हुआ उसमें, कि ये नहीं समझ आ रहा कि ये पेज किस लिए है। तो जो हमारे यूआरएल्स होने चाहिए वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। तो बेसिकली उनमें जो कंटेंट है वो उस कंटेंट से रिलेटेड ही हमारे यूआरएल्स होने चाहिए, डिफाइन करने चाहिए। सो बेसिकली और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें हमने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड करी, तो हमें मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऑल्ट एट्रीब्यूट्स नहीं है, कुछ इमेजेस के ऑल्ट टेक्स्ट ही नहीं है, तो वो भी हमें ऐड करना है। ये हम ऐड कर सकते हैं खुद, क्योंकि ये एसईओ का पार्ट आ गया। देन कुछ लिंक्स हैं जो क्रॉल नहीं हो रहे, ठीक है, तो हमें उस चीज पे भी देखना है। और ये हम क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग का पार्ट हम अपने डेवलपर को भी दे सकते हैं और हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये था हमारा मोबाइल वर्जन। अब हम चेक करते हैं डेस्कटॉप वर्जन। तो डेस्कटॉप वर्जन में भी वही सब चीजें होती हैं। तो बस यहाँ परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस, इनका थोड़ा स्कोर चेंज हो गया है। और यहाँ पे ट्री मैप में दिखा रहा है कि सबसे पहले कौन सी इमेज लोड होती है, सबसे पहले क्या क्या हमें शो हो रहा है, तो वो सब चीजें। और यहाँ पर भी सजेशंस दिए हुए हैं कि किस किस चीज़ों पे हमें काम करना है, तो वो सब चीज़ों पे हमें वर्क करना है। एंड देन क्या होगा, हमारे जो वेबसाइट की स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल ओके। अबाउट गूगल पेज स्पीड इनसाइट। तो यहाँ से आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करके आप उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं, ओके। तो एक चीज मैं ये पूछ रहा था। तो ये जो टूल है गूगल का है, और ये जो आप बता रही मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, ये भी बता देगा कि क्या मतलब लिमिट है उसकी, कैसा जो है, मतलब कि लिमिट नहीं, अगर ज्यादा हो गई तो ये भी बताए। ये बेसिकली वो ये चीज नहीं केवल यूजर बताएगा। इंटरफेस बताएगा। हाँ, ये बेसिकली आपको बताएगा, हाँ यूजर इंटरफेस बताएगा ये। और नहीं, मतलब हमें बैकएंड की चीजें भी बता रहे हैं ये। बट ये है कि इतना डीप में वो सब मतलब ऑन पेज के बारे में ऐसे नहीं बताएगा। ओके ओवरऑल ओके जो ओके। सारी चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में बताएगा, कि ये नहीं सिर्फ ऑन पेज जो एक चीजें हैं उन पे फोकस नहीं करेगा। ओवरऑल जो एसईओ और सब चीजें हैं, उन पे सब पे फोकस करता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। Yes, ma'am. एनी अदर क्वेरीज, कोई और यस। क्वेरी है किसी की? Okay, so if everything is clear, you can do one thing, you can practice all of these, लाइक कि आप ये अपने एंड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज इसकी कोई असाइनमेंट वी विल नॉट गिव यू। इसकी मतलब जस्ट ये ब्रीफिंग थी कि ऐसा भी कोई टूल होता है जिससे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और आप सब इसकी प्रैक्टिस करना। एंड दोज हु हैवंट सबमिटेड द असाइनमेंट टिल नाउ, प्लीज सबमिट इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। And if everything is clear to you all, we can wind up today's session here only. And I'll see you in the next session. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Bye, everyone.